सारे फैकल्टी फाइनेंशियली अवेयर है, तो एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड सर प्लीज एक्सेप्ट दिस। तो आज का सेशन जो है ना वो फाइनेंशियल लिटरेसी के शायद सेशन आपने बहुत बार लिए होंगे, बट आज का सेशन जो है वो मॉडर्न वे ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है, जिसमें हम जहाँ कोई भी प्रोडक्ट आपको शायद एडवाइस नहीं करेंगे, बिकॉज एक प्रोडक्ट किसी एक व्यक्ति के लिए सही हो सकता है, दूसरे के लिए वो सुटेबल नहीं हो सकता। तो हम क्या आज बताने की कोशिश करेंगे कि किन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए और कैसे 2026 या गोइंग फॉरवर्ड हमें किन बातों का ध्यान रखना है फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, तो फॉर दिस हमारे साथ आज विकास जी हैं जो कि निकॉन इंडिया एएमसी के क्लस्टर हेड हैं। मैं इनवाइट करना चाहूँगा ताकि वो आपकी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताएं। Thank you, Anil. Thank you so much, sir, for the opportunity. I think it's always an opportunity to teach the teachers. Very difficult. So I have this opportunity and take it very in a very different fashion and different subject altogether. What a different subject है, that's very nice. I hope we are not working for money. Everybody agrees. Please, I need your participation, please. So everybody is working for money. We are working hard. We are putting all the efforts day in day out. We are working for something which is not on money, just to fulfill the future dreams. Okay, now छोटे बंदे क्या कितने लोग मानते हैं पैसा ज़्यादा मेहनत करता है? Is there anybody who says कि उनका पैसा ज़्यादा मेहनत कर रहा है, हम कम मेहनत कर रहे हैं? See, this is the basic problem. हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, या पैसा बहुत स्लो चल रहा है। सपने बहुत सारे हैं, सपने क्या है? घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, मुझे मर्सिडीज भी चाहिए। और आज के यंगस्टर्स को डेली आईफोन 17, आईफोन 18 में पता नहीं लगता। So dreams are so big. Dreams to fulfill particularly what to do, which is very important. And today we will take you through this session. यहाँ पे I know कि बहुत सारी चीजें सर आप लोगों को पता होंगी. We know it. It is just a rub-off. We can come back to the same thing. Why? How can I do this? मेरा पैसा मुझसे ज़्यादा मेहनत करे. At the end of the day, when I need it, तुम मेरे लिए काम करो. This is very important. So, just a simple question. What is saving? A very simple question. Saving क्या होता है? Anybody? So anything which remains after expenses, 10,000 रुपए कमाए, 8,000 रुपए खर्चा करके 2,000 रुपए. This is simple. So what is investment? So जो अकाउंट में पैसा रह गया that is saving. Because we have saved it. 10,000 में से 8,000 खर्चा कर दिए, 2,000 रुपए बच गए. लेकिन जब तक तुम उसको इन्वेस्ट नहीं किया, उसको कहीं पे काम पे नहीं लगाया, मैंने तो बहुत मेहनत की, लेकिन पैसे ने कितनी मेहनत की, उससे मेहनत कराना शुरू किया. This is called investment. So some of us might be knowing Warren Buffett. नाम सुना होगा? हाँ, सुना है. So he is one of the richest person. He is pioneer in investment. He is somebody who has never took even a single penny out of the markets. He's been always putting in money. So what he says, do not invest. Generally हम क्या करते हैं? Investment हमारा कैसे होगा? जैसे अभी हमने डिस्कस किया, 10,000 रुपए कमाए, 8,000 खर्चा हो गए, 2,000 बचे, उसको इन्वेस्ट करेंगे. What is important to know? We have to start saving first. पहले खर्चा कमाए, 10,000 कमाए, 5,000 बचाए,
इन्वेस्ट किए, खुद 5,000 में खर्चा चलाया। मेरी सैलरी जब 10,000 रुपए थी, मैं उसमें भी काम चलाता था। आज 1 लाख रुपए है, उसमें नहीं चल पा रहा है। This is a problem. So this is a cycle that happens with us. It is just the mindset कि अगर हम सेविंग ढंग से करते हैं, we start our savings properly, then we can actually create a portfolio. And this is what he says. कि spending हमेशा बाद में होनी चाहिए, saving पहले होनी चाहिए। So ये छुआ, this is what is mostly discussed in our lives. Inflation. We know about it. कितने लोग परेशान हैं इससे? ये फैमिलीज परेशान होता है और कैसे करते हैं? Everybody has to be परेशान करो हम महंगाई। So this is something which is very tough for us to handle in our lives. अब देखिए नोट खाया जा रहा है। So tough. मेहनत से पैसा कमाया और नोट ये खा लिया। This is what happens to us in general in our personal lives. This is always happen. आपको पता है? अब क्या करते हैं उसके लिए? We can complain. Actually, this is what happens. We can complain. We can go to the media and say, "महंगाई बढ़ गई." But what is important? To not let this mouse eat my money. इसको खाने नहीं देना. We have to do something so that I am actually able to create value of money. I know many of us might have done so much planning for our lives, for our children, for our kids, for our future. Everything might be planned, but this is something which is not controlled. अभी स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में जो भी हुआ, अभी वो so many things happening. लेकिन तेल के दाम बढ़ने लग गए, सिलेंडर के दाम बढ़ने लग गए, गैस मिलना बंद हो गई। एक सिलेंडर की जरूरत थी 5 की बुकिंग करानी लगी। महंगाई अपने आप रेट बढ़ने लगे, डर था कि ऐसा हम रेट और बढ़ जाए तो इससे बढ़िया स्टार्ट एक्यूमुलेट। दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। सो आज से 20 साल पहले दूध का दाम क्या था? 10-12 रुपए। पेट्रोल मैंने 20 साल पहले, 25 साल पहले 17 रुपए लीटर भी खरीदा था, आज 100 रुपए के आसपास। ये क्या हमने दूध पीना बंद किया है? कितने लोगों ने कम कर दिया दूध? We are consuming the same thing. पेट्रोल कितने लोगों ने गाड़ी चलाना बंद कर दिया? So शराब की इनकम बढ़ जाएगी। So this is what happens. अगर मैंने प्लान कर लिया सर महंगाई जितनी भी बढ़ जाए, अगर मैंने डिसिप्लिन से फॉलो अपने लाइफ में अपने पोर्टफोलियो में डिसिप्लिन फॉलो किया तो आई नो दिस इज नॉट गोइंग टू हिट मी। मुझे ये नहीं कर सकता, मैं हमेशा प्लान हूँ, आई एम रेडी फॉर एनीथिंग। आई शो यू सम सैंपल्स। आई बी देयर विद दिस कंपनी निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड फॉर लास्ट 20 years. 20 साल हो गए मुझे। So I've seen a journey wherein there have been very different cycles. बहुत सारी cycles थी जहाँ पर मार्केट ऊपर था, inflation भाग रहा था, inflation कम होता था, so many cycles. One thing I learned कि patience is something that plays a vital role into our investment journey. बहुत सारे लोगों को अलग-अलग एवन्यूज अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर मैंने 100 रुपए आज है मेरे पास, तो इन्फ्लेशन को अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो इसका एक एग्जांपल बहुत सिंपल भाषा में देता हूँ। मेरे आज के 100 रुपए में मुझे एक्स चीज मिलती है, 6% का महंगाई दर है, 6% इन्फ्लेशन इज जनरली व्हाट गवर्नमेंट सेज। एक साल बाद अगर मैंने पैसे को कुछ नहीं किया, मैंने मेहनत पे नहीं लगाया, मैंने कहा भाई मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा, मेरा पैसा आराम करेगा, अच्छा लगता है कहना, सेविंग अकाउंट में 15 लाख बढ़े, 10 लाख बढ़े, सो वी फील हैप्पी, वी फील वाओ कि जब स्टेटमेंट आता है, एक मैसेज आता है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख अकाउंट पे बढ़े हुए, इट्स अ वाओ फैक्टर। बट प्रॉब्लम ये साथ है, अब प्रॉब्लम दैट इज एसोसिएटेड कि महंगाई की वजह से मेरे पैसे की वैल्यू कम हो गई है। जो मैं आज 100 रुपए में खरीदूंगा, क्या मैं एक साल बाद वही चीज 100 रुपए में खरीद पाऊंगा? प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो। प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो बिकॉज़ 6% का इन्फ्लेशन विल डेफिनेटली हिट द वैल्यू ऑफ मनी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जनरली होता है 6% की जब गवर्नमेंट निकालती है तो एक बास्केट ऑफ कमोडिटी, कुछ लिमिटेड गुड्स हैं जिसको हम वी टेक इनटू कंसीडरेशन एंड वी काउंट द इन्फ्लेशन। लेकिन हमारी रेगुलर लाइफ में देयर आर सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें होती हैं।
जो कि हमको डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे हाँ बैलेंस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हेन यू थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। तो ये एक छोटा सा सैंपल है, दिस इज व्हाट विल शो यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, इमेजिन आज के आपके 30,000 रुपए के खर्चे, आज के आपके 30,000 रुपए में जो आप मतलब अपना जो भी खर्चा आप चला रहे हो, आज से 20 साल बाद सेम चीज, सेम कंजम्पशन पैटर्न, वही चीजें आप कंज्यूम करोगे आज से 20 साल बाद, तो कितना पैसा देना पड़ेगा? 80,000। वही चीज कंज्यूम कर रहे हो आप, मात्र कितने परसेंट इन्फ्लेशन लिया है? 5%। राइट डिफरेंस 30,000 रुपए अपने आप कुछ नहीं किया मैंने, बहुत हार्ड, मेरे को आज से ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज दिस इज गोइंग टू हिट मी इन फ्यूचर। आज मैंने प्लान नहीं किया, मैंने 7% के रिटर्न पे पैसा लगा दिया, आई एम हैप्पी बिकॉज सेफ्टी इज द प्राइमरी कंसर्न फॉर मी। तो 7% लगा दिया, लेकिन 5% के लिए लगे दे ही जाए, क्योंकि आज अगर मेरा 5 साल बाद एफडी में मैच्योरिटी होगी तो सालाना महंगाई बढ़ रही है, वो तो ऑटोमेटिकली हिट करेगी मेरे रिटर्न। एट द एंड ऑफ द डे मेरे हाथ में क्या बचा? 7% रुपये लगाया, 5 रुपये महंगाई नहीं जो कि मुझे दिखा नहीं। मैं खुश इसलिए हूँ, मेरा पैसा बिल्कुल सेफ है। मैंने 100 रुपये लगाए थे, मेरे 100 रुपये बढ़ गए 107 रुपये। बैकग्राउंड में 5% महंगाई खा रही है, क्योंकि खर्चा करने जाऊँगा 5% में आ चुका होगा, कॉस्ट बढ़ चुकी है। This is the basic problem. So यहाँ पे आप देखो 30,000 की वैल्यू ऑटोमेटिकली 80,000 हो रही है विदाउट डूइंग 5% इन्फ्लेशन बहुत दूर करेंगे। अब सेविंग्स, तो अभी हम खुशी की बात कर रहे थे, लाख रुपए हमने लगाए, लाख रुपए मेरे पास सेविंग अकाउंट में पड़े, we do nothing to it, हमने कुछ नहीं किया, it is just lying in saving account। 20 साल बाद उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? 35,000। You do nothing to it, this is not the justice। हमने बहुत मेहनत की, we gave 8-9 hours 10 hours to our jobs to create something for the future, और at the end of the day demand on something हमने अगर ढंग से नहीं किया तो क्या होगा? मेरा 1 लाख रुपए 35,000 अपने आप रुपया होगा, पेड़ उठता ही just for the person मैंने discipline लगाया, मैंने intelligently required to make money, and which becomes very very important at the end of the day। Inflation is something that should be considered। What to do? सबसे पहली चीज है start saving। How many people are saving out there? Good point saving। We all are saving either into RDs, FDs or mutual funds। कितने लोग mutual fund में? Good। So start saving earlier, you start it। अच्छा कितने लोगों को अभी गलत है SIP इतने का रख दिया। How many people are feeling bad कि अभी markets have gone down इतना economy money होगा। So now you put back the money for sure after this session। So this is very important। Start saving early। I'll give the example now, just to show it। We have seen these cycles in our lives, and I'll give you a classic story, a real time story that has happened in my life। I'll share it some time। So progress from saving to investment। So saving definitely is a happy moment for us always। कि पैसा पड़ा है अकाउंट में, always happy कि 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख अकाउंट में पड़ा हुआ है, and always enjoy कि पैसा पड़ा। लेकिन it is not right, it has to be invested somewhere with the inflation to be done, which is the basic thing। accumulation या उस पैसे को आराम करने देने से अच्छा है put money, उससे ज़्यादा पैसा मैनेज करेगा तो मेरा फ्यूचर क्रिएट हो पाएगा। So we have worked hard for money, our money has to work hard। This is something which is very very important। We all know this। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी एस्पेक्ट है। We give everything to our lives, we give everything to our families, our jobs, but if we think about our future, this is something which is very very important and benefit from power compounding। So I'm looking forward, you can teach me also। So
power compounding is, I know he might be understanding, it's very simple, very ये अप्लाई होता है तो it does wonders, it is eight wonder of the world. So ये बहुत जरूरी है हमारे पैसे में जो compounding है, it becomes very important to create a bigger portfolio. एक और चीज है जो अगेन वॉरेन बफेट मिस्टेक है, he says never depend on single income. Always create a second source of income. How do we create a second source of income? Through a portfolio. Uneven times, contingencies, emergencies are always a part of our lives. मेरा ये जो second source of income है, that will help me in my contingencies and emergencies when I need it. So let's see. So एक basic rule जो है ना, this is very important. So when we invest, markets or times may be different. Everybody, so किसी का यहाँ पे Mercedes लेने का या गाड़ी बड़ी गाड़ी लेने का या लेने की वजह से बहुत सरकार बहुत है। सर कौन सी गाड़ी लेनी है? Audi लेनी है, great. तो सर कौन सा Audi? So it has a price. So this is a goal for you. This is what you need to plan. अब होता क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आती है? My goal is not aligned to my investment. होगा क्या है कि मुझे कोई टर्बुलेंस होने and lose my patience, I will lose the return. So to achieve that goal, अब body कितने की आ रही होगी अभी? 60 लाख, 60 पैसे to do that there should be a plan and we can do it. So this is how we take away our goals, we take our goals further, and this is how we create a journey over a period of time in terms of investment. So some of the options. So gold, how many people feel gold is the best option? Say, and in the recent times, it has done wonders. We have seen a lot of return happening, and definitely we as Indians, we cherish gold. हमारे किसी भी function में, किसी भी family function में gold is something that is two parts. This is very important. So definitely yes, it has to be a part of asset allocation होना चाहिए, but into a limited sense. Stocks. मुझे बहुत डर लगता है stocks. So why डर लगता है? Risk of fluctuation and movements up and down. So I'll give an example of it. So we saw 2019. So what was it? COVID. 2020 in fact, not 2019. It was 2020. COVID. We knew there is a threat of COVID. If we breathe, there is a risk of life. Did we stop breathing? We knew there is a risk. We have kids. We take them to school. We know there is a risk on the road. If we take our kids on the road, there can be an accident. Any car may come, could be हो सकता है, there can be an accident. There is always a risk of life. But we are ready to take risk on our kids and ourselves. तो रिस्क लेंगे तभी वो जितना उसको रिस्क हो गया उतना ज़्यादा over a period of time it will be. So risk is always associated with the type of return you create. Bank deposits. Bank deposits. Would you like some? Would you like some? So our low return means to say again our part of asset allocation has to be there. अब मैं म्यूचुअल फंड से हूँ, I should say नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए. This is worst thing I do. It is important. There has to be a safe content in your portfolio that has to be there. A part of asset allocation होना चाहिए. But up to an extent, as per the age and I think Aditya Bhai is there. He is there, so he is the best person to judge how much portion can be there into a portfolio to every as of now. So insurance, as an investor, is good. So insurance, how many people feel insurance is the best option to invest? So the insurance as of now was made to secure our lives. इसका basic purpose क्या था? To secure our lives. If we are not there, our family can run away or have their lifestyle the way they are having it right. जैसा अभी जी रहे हैं वैसा ही हमारे रहने के बाद
This was the basic purpose. It gradually diluted. We started moving to invest out there. The basic investment philosophy in insurance is term insurance, which is very good. Everybody and anybody has to have it. But investment की बात करूँ तो I will not suggest कि आप उसमें investment per se you go. But for definitely to secure your lives is property. I think everybody will agree. This is the most important thing. So इसकी अभी recent example, I was there 3.5 years back. I was there for 4.5 years. So I came to Lucknow. So 4 साल बाद Lucknow आया. I was studying with my father. So this is something I cannot manage bully properly. So I was sitting with my father out of my house winter season था. So somebody came, पड़ोसी आए, कहते हैं अरे ऐसा आपका वो घर का वैल्यू बहुत बढ़िया. जैसे उन्होंने बोला मेरी आंखें थोड़ी I felt good कि अरे भाई दुकान का वैल्यू बढ़ गया, कितना बढ़ गया. तो मैं father was very good. मैंने तो चली गई मैं वापस पीछे पड़ गया. मैं पापा का नाम होता है नहीं लगा नहीं. Let us see the discussion कर लिए कि जो पैसा वाला है कि देगा तेरा तो मांगे नहीं जाते किसके मांगे प्रॉपर्टी वाले को बताया. तो जो प्रॉपर्टी का दाम का दिमाग शुरू हुआ. It started from 1.5 crores. तो वैल्यू 2 करोड़ बताई गई थी, 1.5 करोड़ से स्टार्ट हुआ. क्योंकि आपने बेचने के मूड में तो उसकी वैल्यू गिरना शुरू हो गई. There is no real value that is associated with this asset. It is important. ये कहना गलत हुआ कि नहीं important नहीं, लेकिन क्या आज मुझे कोई अर्जेंसी हो मुझे पर पैसा मिल सकता है प्रॉपर्टी से. खाली एक तरीके से मिल सकता है मैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी. That is the only thing, otherwise मैं पैसा नहीं निकाल सकता. कोई भी एविडेंस क्या नहीं. So limited property into the property is good. एक limited amount या एक limited property जितना आप मैनेज कर सकते हैं पर मुझे उसके आगे becomes unfeasible. मेरे पोर्टफोलियो के लिए अच्छा नहीं है, वो फिर illiquid assets की तरह मूव कर रहे हैं. So investment की philosophy बहुत सिंपल है. सबसे पहला रूल क्या है? It has to fight inflation. मेरा जो निवेश है वो पहले inflation महंगाई को मार दे. मुझे इनकम दे सकते, मुझे जब जरूरत है मुझे उसमें इनकम दे सकते. ये दूसरा रूल है which is very very important to know. मुझे पास में भी एक्सेसिबल हो, यूजेबल हो, मुझे जब जरूरत है तब मुझे इसकी एक्सेस मिलना. मेरे पैसे की वैल्यू बढ़ती रहनी चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अप्रिशिएट होना चाहिए. फेयर वैल्यू जैसे अभी मैंने प्रॉपर्टी का दिया फेयर वैल्यू नहीं दोनों ही हो सकता है. एक चीज़ की 100 रुपये वैल्यू हो उसकी 200 मिल जाए और हो सकता है उसकी वैल्यू 200 उसकी 100 मिल जाए. So there is no fair value of it. So this is asset allocation which is very important. Proper asset allocation has to happen. And I think Aditya is going to discuss a lot about it. So he'll take it further. So this is a very very beautiful thing. So a very beautiful thing. इसमें सारे व्यंजन हैं. So इसमें प्रॉपर्टी भी है, इसमें आपका म्यूचुअल फंड भी है, इसमें आपका स्टॉक भी है. There is everything. This is how what we do. अगर मैं इसमें खाली दाल भर दूँ, how will you feel? Not good. मजा नहीं आएगा. गोभी भी तो नहीं खाएंगे. Asset allocation has to be there. A balance has to be there. So before going further, I will give you a very very realistic story that I feel and generally I share this. I feel it's very important as an investor to know कि लगता है दूर से लगता है कि it's very risky है. So it was a साथ ही बात है. I joined this company in early 2006. So I was there in my office. I knew that I had to do the operations for it. Everybody takes the new guy on the task. तो मेरे को बोला गया कि भाई हम लंच पे जा रहे हैं. You sit on the front desk and you take care of anybody coming in. अगर कोई आता है तो देख लें. तो एक बुरी सी लेडी आती है. A 72 years of age lady, she comes to my office. एक छोटा सा piece of paper she gives to me.
और कहती है बेटा इसमें देखो कुछ है, आई स्टार्ट सीइंग दैट। मैं सिस्टम में बेटा इनपुट करवाने के लिए शी स्टार्टेड टेलिंग मी हर स्टोरी, वो अपने बारे में बताया कि बेटा माय हस्बैंड डाइड इन ईयर 2000। मैं सब 95 में ही शोड सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी एक्चुअली किसी को नहीं पता उनके घर में भी व्हाट हैपेंड, उस पैसे का क्या किया गया किसी को नहीं पता। ईयर 2000 की तारीख सन 2007 में उनके बेटों ने, उनके बच्चों ने जो बिजनेस किया, बिजनेस भी at the end of the day there was lose हो गए, उनके ऊपर lose हो गए, बैंक के things थे वो बट ऑफ केस उन्होंने अगर बैंक को देना पड़ा, they lost everything। बच्चों ने जब घर शिफ्ट करना शुरू किया, ये हुआ फाइनली दे हैव टू गो टू अ रेंटेड हाउस। वो रेंटेड हाउस का वहाँ शिफ्ट करने के लिए जब सामान शिफ्ट कर रहे थे तो उनसे फाइनली बड़ा सा कागज था, एक एलआईसी का पेपर था। तो किसी ने मुझे बताया कि हजरत मेरी ऑफिस में दो दिन आप देखो, अगर मिलेगा तो मिल जाएगा, कुछ होगा। तो शी डिड डू दिस। आई सॉ कि मैंने देखा सिस्टम में देयर वाज अ लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट दैट वाज डन इन 1990 ये सब 95 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट। सो सन 2007 में 1995 में एक लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ। I just saw the value, I was shocked. My whole house was where I was thinking. So I just want to know from you what can be the value. एक म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड में पैसा था लाख रुपए। लाख रुपए लगाए थे, कितनी वैल्यू होगी? 10 लाख। Sorry, hang on. Great. So it's 50 lakhs, 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। अब हर कोई सोच रहा है कि मुझे कैसा मिलेगा, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में होता है। So स्टोरी आगे क्या थी? 50 लाख रुपए थे, हमने उनका जो नॉमिनेशन था वो कराया, ट्रांसमिशन कराया, उनके नाम पे पैसे ट्रांसफर हुए। अनफॉर्चुनेटली लाख 2 लाख रुपए का हो गया, 48 लाख रुपए उनके नाम से ट्रांसफर हुए। वो जो मकान देना पड़ा था 22 लाख रुपए में, तो 26 लाख रुपए का वापस मिल गया। बट शी नेवर वांटेड टू मूव आउट मींस ऑफ हर हस्बैंड हाउस, अपने हस्बैंड का घर भी छोड़ा। उनको अपना घर मिल गया, बाकी पैसा बच्चों को दे दिया, लोग ले हो गए सारा। अब वेरी वेरी नाइसली प्लेस्ड स्टोरी, इतना अच्छा लग रहा है। आई विल गिव द अदर साइड ऑफ इट। मैम फॉर यू 1995 लाख रुपए लगाए थे, ये 2000 इन्होंने बैक एंड फॉर द वैल्यू वाज 95,000, 95,000। अगर सन 2000 में जब हस्बैंड की डेथ हुई तो बताओ कि ये पैसा पड़ा हुआ है, क्या वो पैसा था? क्योंकि दवा होता पैसा पता नहीं क्यों ये पैसा है। ये 2000 it became 50 lakhs and today just want to know the value, आज क्या वैल्यू है? 1 लाख रुपए की 95 से आज सन 2026 almost 31 years क्या वैल्यू होगी? Anybody? So it is 4.6 crores approximately। तो 4.5 करोड़। अब इसमें सबसे जरूरी चीज तो मैंने इस व्हाट आई लर्न अबाउट दिस इज होली, दिस लर्निंग फॉर मी इन लास्ट 20 years was patience was something that I lost। You will lose। ये होता क्या है, ये जो साइकिल्स हैं मान लो कि हम तो डराते हैं और हम डर जाते हैं, अपने फ्यूचर के गोल्स को भूल जाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ये जो हम सपना देख रहे हैं कि वी हैव टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो, वी हैव टू क्रिएट अ रिटायरमेंट पर्पस, एनीथिंग। आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू, वी टॉक अ लॉट अबाउट यंगर जनरेशन, Gen Z, Gen Y, we are talking about right now।
How many of us will agree to this कि उनके बच्चे जब उनका रिटायरमेंट हो चुका होगा they will be there taking care of them? How many of us will agree? Anybody who agrees to this? You are ready? You are ready? So करें तो क्या करें? अगर मेरे पास एक portfolio structure होगा मेरे पास पैसा होगा तो there are chances कि वो जो बच्चे हैं मेरे उस पैसे को देख के शायद मेरे पास आ जाएंगे क्या ये बात आपके पास पैसा है तो चलो उनका ध्यान रखेंगे and this is realistic, this is real and you can't be able to do this. तो इसलिए भी बहुत जरूरी है कि you plan your retirement and you use a very different thing. We always talk about power of compounding also. Power of compounding is very unique. So I'll give you a piece. I'm just going to finish it off. So simple question from you. एक story from me है. So ₹1 महीना my दादाजी started investing into mutual funds, equity. ₹1 महीना मेरे दादाजी ने स्टार्ट किया इन्वेस्ट करना इक्विटी मार्केट्स में at the rate of 15% he got a return. 40 साल उन्होंने इन्वेस्ट किया. He came back to my father कि बेटा एक मैंने 40 साल दे दिया 40 साल तुमको ₹1 महीना उन्होंने निकाल दिया ना 15% का रिटर्न आ गया. My father came back to me saying कि बेटा ये 20 साल तुमको चलाना है ₹1 महीना तुमको देना है ₹1 महीना बोली नहीं है सारे ₹1 महीना तुमको देना है इक्विटी मार्केट में पैसा. तो टोटल नंबर ऑफ इयर्स कितने हो गए 40 40 20 100 इयर्स ₹1 महीना दिया कितना होगा 1200 रुपीस ₹1200 लगाया 15% ऑफ रिटर्न. जस्ट वांट टू नो द वैल्यू क्या वैल्यू any idea this is power of compounding. We talk a lot about it. और इसमें प्रॉब्लम क्या आती है power कंपाउंडिंग काम कब नहीं करता जब हम कोशिश जब कंपाउंडिंग का मौका आता है जब कंपाउंड होना होता है पैसे को कंपाउंड करना हम भी करते तो हमारे पड़ोसी का पता चल गया कि उनका पैसा लगा हुआ है जितना मैं टेल यू पैसा मार्केट आज गिर रहा है तो जब तक आपका पैसा निकल नहीं जाएगा तो मेरी आपसे नॉक करके बताएंगे पैसा मार्केट में सो क्या वैल्यू होगी एनी आइडिया anything five days लेकिन this ₹1200 लगाए हैं 100 साल ₹1 महीना लगाए 15% का रिटर्न 1200 कितना गुना हो सकता है 100 साल. Imagine this is basic power of compounding. I'll hand it over to Aditi, please. Thank you so much. Thank you. Hi, good afternoon everyone. So, बहुत से लोग मुझे जानते हैं, सर दो तीन बार मेरा नाम लिया, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, मैंने जाने थे, मेरा फाउंडर ऑफ कैपिटल टीम. मैं आज कुछ आपसे नॉर्मल बातें करूँ, वो बातें जो आपके अगल बगल होती हैं, वो बातें जो शायद आप अचीव करना चाहते हैं
इसका आज का तरीका है। तो इसको शुरू करने के लिए मैं सबसे पहले आपसे ये बोलना चाहूँगा यू शुड कीप इट इंटरैक्टिव। मैंने बोला मैं नॉर्मल बातें करता हूँ, चाहे नंबर्स पे या ज़्यादा चीज़ें, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, एकदम नॉर्मल जवाब। सो 5G की दुनिया में क्या आपका इन्वेस्टमेंट अभी भी 2G में चल रहा है? कभी ये सोच के देखिए। So from all the people जिन्होंने शायद पिछले 20 साल 30 साल पहले से इन्वेस्टमेंट चालू करी है, तो पूछना चाहूँगा कि पहले प्रोडक्ट आता था किसान विकास पत्र, सुना हुआ है? ओके, NPS सुना हुआ है? ये तो रिसेंटली आया है। फिर क्या हुआ, NPS आज से 7 साल पहले 5 साल पहले वाला NPS जो गवर्नमेंट रूल्स लेके आई थी, और गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली कुछ चेंजेस की। आर यू अवेयर अबाउट दैट चेंजेस? दूसरा है PPF। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसने PPF 10-15 साल से चला रखा है, कोई है ऐसा? यस। तो क्या आप बता सकते हैं कि किस इंटरेस्ट रेट पे आपने शुरू किया? It was 10%. Yes, yes. So it was 10%. Now tell me, विकास जी ने बोला इन्फ्लेशन 5 से 6%। तो अगर ब्याज दर 10% थी, तो क्या वो प्रोडक्ट उस टाइम पे गलत था क्या? नहीं था। क्यों? क्योंकि 5% का इन्फ्लेशन के मामलों में उस जमाने में, क्योंकि तब क्या था, नीड्स बड़ी कम थी, वॉन्ट और भी कम। यस, टैक्स भी आज भी है PPF। और सबसे पहला पॉइंट होता है कि टैक्स भी हो जाएगी। दूसरा है कि सभी उस टाइम के एल्डरली ने सबको गाइड किया कि PPF तो तुम्हें करना ही करना है। PPF तो वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आपका पैसा कंपाउंड होता रहता है, पूरे लॉन्ग टर्म में काम। तो सबने किया। अब हर कहीं उस समय पे तो 10% का ब्याज दर और 5% की महंगाई थी। इतनी ज़्यादा एम्बिशन भी देखिए बच्चों को भी कि पढ़ना था, सिर्फ पढ़ लेना था और ज़्यादा खर्चे नहीं थे। तो उस टाइम पे तो वो ठीक था, बट क्या आज वो सही है कि नहीं? और इसी तरीके से हमारे और भी इन्वेस्टर्स को हमें ये प्रश्न पूछना चाहिए कि आज के ज़माने में क्या वो सही है या नहीं। तुम्हारे लिए आदित्य एंड मैं एक प्रैक्टिकल एडवाइजरी पे बिलीव करता हूँ। मैं आपके साथ आज कुछ रियल लाइफ यूज केसेस शेयर करूँगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल शेयर करूँगा कि कैसे आज जो लोग मॉडर्न वे ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग को ऑप्ट कर रहे हैं, वो अपने जीवन में कैसे और ज़्यादा सुधार ला रहे हैं, कैसे और सरलता ला रहे हैं, अपने पैसे को कैसे प्रिजर्व कर पा रहे हैं while taking care of your goals. So my promise is that I am not going to tell you about any scheme or not going to sell you any returns, क्योंकि शायद बहुत से लोग प्रेजेंटेशन सुनते हैं तो वहाँ पे वो देखते हैं कि कितना रिटर्न यहाँ मिल रहा है। अच्छा, वो व्यक्ति आया था उसने कितना रिटर्न बताया, राइट? LIC वाला आया था उसने क्या बताया था कि वो कितना देगा कितना मिलेगा, राइट? ऐसा कुछ याद होगा। बट वैसे ही शायद बात करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ कि क्या स्ट्रक्चर्ड वे में, डिसिप्लिन वे में गोइंग फॉरवर्ड आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेके जा सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे बहुत से लोगों ने हाथ उठाया कि म्यूचुअल फंड्स में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दिस इज अ टिपिकल 50 लाख रुपीज ऑफ पोर्टफोलियो लुक लाइक आजकल की डेट में, थोड़ा भी अवेयर है तो भाई 20 लाख रुपए ना म्यूचुअल फंड्स में है, राइट? 10 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में, शायद किसी के लिए ये नंबर हो सकता है कि 30 लाख रुपीज अलोन इन फिक्स डिपॉजिट, देन 30 लाख रुपीज अलोन इन म्यूचुअल फंड हो सकता है, नहीं कर सकता है। 10 लाख रुपए किसी का इंश्योरेंस पॉलिसी में, LIC में मैच्योरिटी आने वाली है और 10 लाख रुपए सेविंग बैंक अकाउंट में है। तो क्या ये अच्छा एलोकेशन है? इट इज वेल डाइवर्सिफाइड, यस और नो? क्या ये अच्छा पोर्टफोलियो है? अगर इस कमरे में बैठे हुए सभी का पोर्टफोलियो ऐसा होगा तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, ग्रेट। बट मेरी नजर में शायद ये पोर्टफोलियो सही नहीं है, राइट? क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि हर एक प्रोडक्ट का यूज केस है। तो सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा क्यों रखना है, प्लीज बताइए। सेविंग बैंक अकाउंट का शुरुआती क्योंकि पहले इस बात को समझ लें तो शायद आपको समझ में आएगा। तो क्या होता था पहले कैश डेली होती है, आपका सिस्टम होता था, तो मेक अ पेमेंट इजी, बैंक अकाउंट्स बनाएंगे जहाँ पे आप पैसे बैंक को देते हो, हिसाब करते हैं ना, उसमें आपका ट्रांजेक्शन इजी हो। तो सेविंग बैंक अकाउंट में आपके पास वो पैसे होने चाहिए जिनका खर्चा आपको हाल फिलहाल में है या एज एन इमरजेंसी, राइट? राइट। तो क्या अगर मेरे खर्चे महीने के सिर्फ
80,000 रुपए है। और एज अ थंब रूल तो मैंने आपको बुक दी है इसमें कई सारे थंब रूल लिखे हुए हैं। तो सेकंड पेज पे लिखा है कि फाइनेंशियल बुक्स में भी लिखा हुआ है कि 6 महीने से 12 महीने के अगर आप पैसे एज एन इमरजेंसी फंड रख रहे हैं तो इट्स गुड। यानी कोविड भी आया था तो 6 महीने एक्टिविटी से ज़्यादा तो नहीं निकल रहा, किसी की जॉब भी जाती है आईटी सेक्टर में या ले ऑफ हो रहे हैं, 3 से 6 महीने में वो प्रिपेयर करके वापस एक जॉब कर सकता है। तो अगर 6 से 12 महीने का बैकअप है तो इट्स गुड टू गो, राइट। तो अगर मेरा 80,000 रुपये का खर्चा है तो मेरा 12 महीने के खर्चे हो गए 60,000। अब मेरे को ये इमरजेंसी फंड तो चाहिए, बट वो सारा पैसा अगर मैं सेविंग बैंक अकाउंट में रखूंगा तो मेरे को ब्याज कितना मिलेगा? 2.8 एंड वो भी 10,000 ऊपर ब्याज जाएगा तो वो मेरे बैंक में जुड़ जाएगा। और वो पता नहीं है कि वो सिचुएशन मेरी जॉब जाएगी भी या नहीं जाएगी। क्यों हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव भी सोचते हैं। तो ज़्यादा अकाउंट में पैसा होना भी हर किसी के लिए सही नहीं है। अगर आपका खर्चा ज़्यादा है, आपके 2 लाख रुपये साल महीने के खर्चे, आपके पास लायबिलिटीज ज़्यादा तो शायद आप रख सकते हैं। बट यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं जिनका बैंक अकाउंट बैलेंस ही कई बार ज़्यादा रहता है, तो दिस इज द टाइम टू रिव्यू। तो मेरे को फिर सेकेंड एवेन्यू कहाँ जाना चाहिए? दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट। अब मेरे को क्या करना है, क्योंकि 1-2 महीने 3 महीने के अर्निंग एक्सपेंसेस अपने अकाउंट में रखने चाहिए, पर उसके बाद मेरे को अपना बचा हुआ इमरजेंसी फंड फिक्स्ड डिपॉजिट में रखना चाहिए, राइट। और जब मैं आगे बढ़ता हूँ इंश्योरेंस की तरफ, तो इंश्योरेंस की आवश्यकता क्या है? जैसे विकास जी ने बताया कि इंश्योरेंस की आवश्यकता ये है कि हम जो भी पैसा हम हमारे ना रहने से या हमारे किसी भी अनप्लान्ड इवेंट होगी या कोई अनसर्टेनिटी होने की वजह से कोई हमारा फाइनेंशियल लॉस होता है, उसके लिए ही हमें सिर्फ इंश्योरेंस चाहिए। तो इन द मॉडर्न फाइनेंशियल प्लानिंग यू ओनली नीड 2 इंश्योरेंस एंड वो होना ही चाहिए। दैट फर्स्ट इज हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब इससे कोई ये नॉन नेगोशिएबल, आपका एम्प्लॉयर आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है उसके बावजूद भी सेपरेट होना चाहिए, राइट। और एक टर्म इंश्योरेंस, तो जिसके पास भी फाइनेंशियल जिम्मेदारी उसके पास टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास अगर कोई भी ट्रेडिशनल पॉलिसी है तो आई थिंक दे आर नॉट मेकिंग सेंस। और बाकी पैसा, यस द राइट आंसर इज म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअल फंड में आप अपने गोल के अकॉर्डिंग पैसा लगा सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड का नाम सुनते हैं हम सबके मन में आ जाता है कि ये तो सारा का पैसा स्टॉक मार्केट में लगाने की बात है, तो ऐसा नहीं। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि जैसे इस ग्रुप में एक तरफ ये वाली बेंचेस हैं, एक तरफ लेफ्ट वाले लोग, एक तरफ राइट वाले लोग। राइट साइड वाले लोगों का कहना है कि मेरे को कोई रिस्क नहीं चाहिए, ओके, मेरे को कोई रिस्क नहीं चाहिए, तो ये लोग डेट फंड्स ले सकते हैं। डेट फंड्स क्या होते हैं? तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उसका अंडरलाइन एसेट सेफ है तो वो भी सेफ चल रहा है, राइट। बट एफडी की जगह डेट फंड क्यों लें? बिकॉज देयर आर वेरी स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जहाँ पे एफडी पे जितना 7-8% रिटर्न नहीं होता है, कई बार वहाँ पे रिटर्न 9%, 10% होता है। बट इट इज नॉट एक्सेसिबल फॉर अस एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि वहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कहीं 10%, कहीं 15%। बट म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोगों का पैसा एक इकट्ठा होता है तो वो एक्सेसिबल हो जाता है। लेट्स से यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ज़्यादातर फीमेल्स इस ग्रुप में मेरे को दिख रहे हैं, तो समझ लेते हैं कि इन सभी को गोल्ड में निवेश करना, ठीक है। तो अभी फिजिकल गोल्ड के साथ सिक्योरिटी इशूज है, ठीक है। ज्वेलरी लेने जाओ तो मेकिंग चार्जेस है, तनिष्क का सबसे सेफ कॉइन भी लेने जाएंगे ना तो आपको 7% महंगा पड़ेगा, 4 से 5% की मेकिंग चार्ज और 3% का जीएसटी, राइट। क्या करें? गोल्ड ईटीएफ ले सकते हैं आप, गोल्ड म्यूचुअल फंड में साइन कर सकते हैं, राइट। अच्छा आजकल गोल्ड तो इतना महंगा हो गया कि एक तोला लेने के लिए आप रुपये चाहिए, उससे भी ज़्यादा चाहिए, पर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपये 1,000 रुपये की एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस तरफ, इनका कहना है कि मुझे सारे एसेट क्लास पसंद है, तो मालूम है मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड क्या कहते हैं? मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड, क्योंकि सारे एसेट क्लास में पैसा आगे बात करेंगे। तो पहली चीज कि इस तरह का पोर्टफोलियो दिख रहा है तो अच्छा है, ये धारणा गलत है। आपकी जरूरत क्या है उसके अकॉर्डिंग आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 60% ऑफ द पोर्टफोलियो इज बेयरली बीटिंग इन्फ्लेशन। आप वापस से बोल के देखिए, क्या आपका सेविंग बैंक अकाउंट का पैसा इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है? नहीं। तो ये 10 लाख रुपए ये 5 साल बाद या 3 साल के आपके अकाउंट में रखे रहेंगे, क्योंकि परचेजेस कौन करोगे? फिक्स डिपॉजिट का पैसा क्या
इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है पोस्ट टैक्स। बहुत से लोगों की यहाँ पे सैलरी 1 लाख रुपए होगी, राइट? अगर 1 लाख रुपए की सैलरी और थोड़े बहुत अलाउंस मिल रहे हैं तो वो 12 लाख को ऐसे ही क्रॉस कर रहे हैं। या किसी की रेंटल इनकम, तो जिनके की हायर इनकम स्लैब है उनके लिए तो फिक्स डिपॉजिट बहुत भी ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि पोस्ट टैक्स रिटर्न 7% से 30% टैक्स में डालेंगे, वो तो और कंसर्न है। तो म्यूचुअल फंड में आपका मल्टी एसेट में भी इन्फ्लेशन बीट हो सकता है, कि यहाँ पे ना ही इन्फ्लेशन बीट हो रहा है, टैक्स इनएफिशिएंसी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है और वीक वेल्थ क्रिएशन। तो हमें अपने पुराने माइंडसेट से निकल के नए माइंडसेट में आना पड़ेगा। एफडी एलआईसी से शायद काम 2026 से उसके आगे बढ़ सकता है, इसलिए इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स को हमें देखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट गलतियां जो ज़्यादातर एजुकेटेड लोग करते हैं, राइट, वो क्या है? इवन इफ यू आर अर्निंग गुड मनी, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट है कि आज की डेट में आप देखोगे फ्रीलांसिंग करने वाला भी लाख 2 लाख 4 लाख कमा रहा है। इट्स व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज टू मैनेज द फंड। तो आपको ये स्किल्स अगर आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, जस्ट इन केस नहीं आती है तो वी शुड कंसल्ट विद अ पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल। ओके, तो क्या होता है ओवर इन्वेस्टिंग इन इंश्योरेंस, जैसे शायद 2 से 3 लोगों ने इंश्योरेंस के नाम पे हाथ उठाया था, तो अगर कभी भी उसका इन्वेस्टमेंट करने का और होता है तो शायद वो एक और नहीं बोले, एक और नहीं। अब मेरा एक प्रश्न है आप सभी से, 2020 के पहले का जमाना याद करिए और 2020 के बाद। 2020 के पहले ज़्यादा स्टार्टअप्स होते थे कि 2020 के बाद होते? 2020 के पहले ये क्या कहते हैं बिजनेस, जॉब टू बिजनेस ट्रांजिशन पहले ज़्यादा था कि अब ज़्यादा? आपके दिमाग में ज़्यादा आइडियाज पहले आ रहे थे या आज ज़्यादा आ रहे हैं? आज आ रहे हैं। आई एम एडवाइजर एंड आई एम फीलिंग कि आज जो जॉब कर रहा है कोई भरोसा नहीं है कि 2 साल बाद उसको अपने ही फंड्स की जरूरत है। 25 साल का व्यक्ति है, एक बच्चा भी है, तो ये सोच रहा है कि मैं आज जॉब करूँगा और मेरे अंदर कैपेसिटी इससे कहीं ज़्यादा काम करने की, राइट? तो अगर वो 24 साल की एज में कुछ बिजनेस शुरू करना चाहता है, राइट, अगर उसके अपने ही पैसे पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है, क्या प्रॉब्लम होगी? तो आप अपने पैसे को फ्लेक्सिबल रख के बढ़ा सकते हो, तो डज इट मेक एनी सेंस टू लॉक योर मनी? इंश्योरेंस पॉलिसी में आपका पैसा लॉक हो जाएगा। तो आज का जमाना क्या है? तो आप फंड इन योर हैंड ओनली, तो पैसा आपके हाथ में है, उसी में आपकी जीत हो बढ़ भी सकता है। और इंश्योरेंस कैन टेक आउट एज आई सेड, बट पैसा आपके पास ही होना ज़्यादा जरूरी है। दूसरी सबसे बड़ी गलती है इग्नोरिंग एसेट एलोकेशन। है ना, अभी बैठे बैठे कि पहले तो पता तो है कि गोल्ड काफ़ी टाइम तक नहीं चला और एकदम से चल गया, 2024-25 को काफ़ी अच्छी रिटर्न दिए था गोल्ड ने। मैं भी बैठे बैठे सर्च कर रहा था ईयर ऑन ईयर हिस्ट्री ऑफ गोल्ड ग्रोथ, इन सबके लिए तो मैंने पाया कि 2011 में ही 26,000 रुपये का रेट पास हो गया, ठीक है, और 2018 तक 31,000 रुपये। तो अगर डायमंड का रेट को इक्विटी में रिटर्न नहीं मिल रहा है तो उन्होंने पैसे निकाल लिए। क्या हम गोल्ड के साथ ये सेम ट्रीटमेंट करते हैं? नहीं, क्यों नहीं करते? हमें लगता है कि हमारा ट्रस्ट ज़्यादा है, राइट? ट्रस्ट ज़्यादा है गोल्ड, ये हमने देखा है। बट मेरा कहना है आप टाटा रोड पे क्लीन नहीं करते हैं, यूपी टीसीएल, कोल इंडिया, रिलायंस, SBI बैंक, PNB, they are also gold of India. They are also gold of India. So the point is कि अगर हम एसेट एलोकेशन को इग्नोर करेंगे तो क्या होगा ना, आपके पास सब कुछ रखेंगे, सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा भी, इंश्योरेंस भी, FD भी, रियल एस्टेट भी, गोल्ड भी, सिल्वर भी, फॉरेन इक्विटी भी, सबके आज इस हॉल में आई थिंक 40 to 50% लोगों के पास आईफोन होगा, राइट? तो फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे?
क्योंकि Nvidia, Microsoft, Netflix, Amazon ये टेक्नोलॉजी को इंडिया बना नहीं पाएगा, तो हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इसलिए ऐसा एलोकेशन जरूरी है कि आपको सब कुछ चाहिए, कैसे कर सकते हैं, तो सबकी सिचुएशन अलग अलग हो रहा है। दूसरा है दो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट, पैसे की बचत हो रही है, आरडी चला दी, अकाउंट में पैसा लाना है, एफडी कर दी, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें हर एक पैसे को गोल से लिंक कर देना चाहिए, जैसे हम बचपन में करते थे कि ये गुल्लक जो है ये गेम वाली है, इससे मैं गेम खरीदूंगा, ये वाली बैट खरीदने के लिए है, और ये वाली जो है ना इसमें तो 20-20 में सेव करके पैसे निकालते हैं, तो व्हाट माय बैलेंस बट देन आइडल मनी सेविंग बैंक अकाउंट एंड पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं करते। पॉलिसी ले ली है, पॉलिसी को उठा के हमने डाल दिया लॉकर में, गोल्ड ले लिया है डाल दिया लॉकर, राइट। रियल एस्टेट ले ली है, अभी मैं फाइनेंशियल हसल फेस कर रहा हूँ, बट रियल एस्टेट को मैंने रिव्यू नहीं किया कि वहाँ पे एक्चुअली क्या रेट पड़ रहा है। जैसे मैं लखनऊ का एग्जांपल दे रहा हूँ, आप सभी रिलेट करो, 4 हाईवेज का नाम होगा, बताना कहाँ ज़्यादा रेट है, रायबरेली रोड, सुल्तानपुर रोड, फैजाबाद रोड या सीतापुर रोड, फैजाबाद रोड और सुल्तानपुर रोड, सीतापुर रोड, ठीक है। अगर मैं इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से चलूँ तो उनका कहना है सबसे ज्यादा पैसा बढ़ा है फैजाबाद रोड में ड्यू टू रामनगर, एंड सेकंड हाईएस्ट पे अभी के टाइम पे चल रहा है सुल्तानपुर, देन रायबरेली रोड, देन सीतापुर रोड, देन रायबरेली। ओके, तो पॉइंट है कि अगर आपका प्लॉट सिर्फ सीतापुर रोड होता तो आप क्या करते लेके बैठे होते, राइट। तो द पॉइंट इज एसेट एलोकेशन जरूरी है कि आप एकदम छोटी बात से समझ सकते हैं, और अगर आपका एलोकेशन गलत जगह पे है और आप रिव्यू नहीं कर रहे तो आप गलत कर रहे हैं, कहते हैं ना जब चाहो तब सवेरा। सो द न्यू एज फाइनेंशियल फ्रेमवर्क वर्क्स लाइक दिस। आपको कभी भी ना नोट्स लेते तो ले सकते हैं, क्योंकि मैं आप बहुत ही अच्छी चीजें बताऊंगा। तो थिंक गोल बेस्ड, आप कोई भी काम कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जाइए, सबसे पहली चीज करिए गोल बेस्ड प्लानिंग करना, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपका यहाँ एक स्टूडेंट है, वो बिल्कुल पढ़ने में अच्छा नहीं अभी, ठीक है, और वो कह रहा है कि आपके पास आया पर्सनली, मैम मेरे को ना इस बार किसी भी तरह 70% रकम चाहिए, व्हाट इज द फर्स्ट एडवाइस यू विल गिव? स्टडी। अगर आप उसको 8 मिनट काटेंगे, भाई हर दिन कम से कम 1.5 घंटा पढ़ो, राइट, तो जाके तो पास कर लो। उसी तरीके से हमें दोस्त को भी ब्रेकअप में डालना पड़ेगा। यस आई वांट टू बाय अ हाउस, क्योंकि आज 1 करोड़ का है, तो पहली बात तो मेरी पॉकेट क्या कह रही है, मैं डाउन पेमेंट इसका 30% दूंगा। अब 30% मेरे पास है भी या शायद नहीं है, तो मैं फिर ये टारगेट करूँगा कि 30% एक्यूमुलेट करने के लिए मुझे 2 साल में कितना पैसा पर मंथ निवेश करना पड़ेगा। तो आपको हमेशा उल्टा सोचना पड़ेगा, तब जाके आप पहुंच पाएंगे। अगर मुझे दिल्ली जाना है तो मैं अपनी कार में 500 रुपये का तेल लगाऊँ या टैक्स फोन लगाऊँ, और मुझे कहीं नहीं जाना, बस गाड़ी लेके बस थोड़ी सी ड्राइव मारने का मन है, तब तो कुछ भी लगाऊंगा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इफ यू वांट टू रीच योर डेस्टिनेशन देन यू हैव टू बी कैलकुलेटेड, देन थिंक टाइम करो, समय जरूर सोचिए पहुंचे कि जैसे अभी किसी ने तो बोला था कि ऑडी लेनी है, ऑडी लेनी है, कम लेनी है, टाइम बाउंड होना ये चीज़ों को, और फिर कैसे एलोकेशन करनी है। तो ये है, आप फोटो लेना चाहे ले सकते हैं। दिस इज द मॉडर्न एज ऑफ प्रोडक्ट सुटेबिलिटी। अगर आपका कोई भी गोल, ये बात करें ना, कुछ भी निवेश करना है, कुछ भी करना है, गोल बेस्ड करना है, तो अगर आपका गोल 0 to 12 मंथ यानी 1 साल के अंदर है, तो क्या आपको उस पैसे में रिस्क लेना है? नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि जैसे कि आपको मैंने बोला कि एज अ सेफेस्ट एसेट लाइक गोल्ड, आपने देखा ना 2011 से लेकर 2018 तक बढ़ी ही नहीं और कम भी हुई, राइट। तो गोल्ड इज अगेन रिस्की इन द शॉर्ट टर्म, तो वो पैसा में कहाँ रखना है? सिर्फ और सिर्फ एफडी या फिर लिक्विड फ्यूचर। उसके बाद है 1 से 3 साल का मेरा कोई गोल है, मेरे को अपने बच्चे का मुंडन करवाना है, राइट, खुद की शादी है 3 साल बाद, घर खरीदना है, कार खरीदनी है, कुछ भी हो सकता है, घर का रेनोवेशन कराना है,
तो वो पैसे मैं कहाँ रख सकता हूँ? देयर आर कैटेगरीज जहाँ पे आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, जैसे मल्टी एसेट फंड जो सारे एसेट क्लास में लगा है, या एक अनबिट फंड जो जस्ट लाइक एफडी होता है और कम से कम रिटर्न होता है, या फिर आप अपने घर में किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पे एफडी करा सकते हो जिसपे टैक्स का इम्प्लीकेशन ज़्यादा ना पड़े, टैक्स का प्रभाव ज़्यादा ना पड़े। फिर आते हैं 3 से 5 साल के लिए अगर मुझे कोई भी निवेश करना है तो मैं कहाँ करूँ? तो आइदर यू शुड इन्वेस्ट इन अ हाइब्रिड स्कीम जहाँ पे गवर्नमेंट के बॉन्ड भी हो, थोड़ा सोना भी हो, थोड़ा रियल एस्टेट भी हो और थोड़ा सा इक्विटी मार्केट भी हो, तब जाके आप अच्छा इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न जनरेट कर पाएंगे और आप तब एक पोजीशन पे आते हैं कि थोड़ा सा तो रिस्क ले सकते हैं। और 5 इयर्स एंड अबव किसी भी गोल पे अगर आप जा रहे हैं तो यू हैव टू बी बुलिश ऑन इक्विटी, क्योंकि हर 5 साल में सरकार बदलती है, सरकार बदलते ही ना कंपनियों के रेवेन्यूज बदल जाते हैं। जैसे मोदी जी का पहला सत्र था, तो एज फार एज आई कैन रिमेंबर वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना हुआ। फिर 2019 से 24 वाले सत्र में वो फार्मास्यूटिकल्स और आईटी में ज़्यादा बुलिश हो गए। उसी केस में यूपीआई हो गया, आत्मनिर्भर भारत हो गया, और इस वाले फेज में आगे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा बुलिश हो, राइट। तो ये सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स भी हमें दिखाते हैं, तो हमें बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर किसी के पास ज़्यादा एफडी, पोस्ट ऑफिस स्कीम, एलआईसी रखे तो क्या खतरा है? मैंने टैक्स की बात करी कि अगर 7% का रिटर्न आ रहा है, 30% का टैक्स आपका कट करना है, तो आपके पास लाभ में तो 5% ही बचता है, तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है। इसको हम सेफली अगर हमें अल्टरनेटिव फंड्स भी करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में ऐसे सेफ प्रोडक्ट्स है जहाँ पे टैक्स का तुरंत हमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेट से आपने एक एफडी कर रखी है जो आपको 5 साल बाद ही पैसे की जरूरत है, पर आप उसमें हर साल टैक्स भर दे रहे हो, राइट, तो आपके फॉर्म 60 पे जुड़ जाएगा। बट उसका भी एक तरीका है कि आप उसको सिर्फ एक म्यूचुअल फंड पे स्विच कर दोगे ना, तो आपको पर ईयर टैक्स को फेस नहीं करना पड़ेगा और आपके पास इनकम टैक्स स्लैब से कम कैपिटल गेन बैठेगा। दूसरा है कि जो भी लोग रिटायर होने वाले हैं या हो चुके हैं, सबसे बड़ा उनका थ्रेट है। जब कोई व्यक्ति रिटायर होता है ना, तो हमारे इंडिया में एक ट्रेंड है कि लोग जीवन में 50 लाख से 1 करोड़ या 2 करोड़ शायद 1 से 2 बार ही देखते हैं। क्या सही कह रहा हूँ मैं? मतलब आज से पहले तो जितने पोर्टफोलियो मैनेज किए हैं, मैंने ये देखा कि 50 लाख करोड़ और 1 करोड़ रुपए को जीवन में 1 ही 2 बार देखने को एक साथ मिलता है, जो अपना, राइट, या तो कोई प्रॉपर्टी बिकी है एक्सेप्शनल, राइट, या तो लॉटरी लगी है, या फिर रिटायरमेंट। अब आप बताइए, लाइफ की तो 3 ही फेज है। जब हम छोटे थे, मैं छोटा था जब, तो मेरे को वो पार्ले जी की जो एक किस्म का टॉफी आती है ना, वो 1 रुपए की 4 से मैंने शुरू किया, और आज मैं खड़ा हूँ 30 साल बाद, राइट। तो मेरे को आज वो पड़ती है 1 रुपए की 1, राइट। तो लाइफ के 3 फेज, पहले 30 साल जहाँ पे आप अपना फाउंडेशन लेवल अपने लाइफ का बनाते हैं, राइट। अगले 30 साल जहाँ पे आप लाइफ का सब कुछ करते हैं, आप अपनी फैमिली एक्सटेंड करते हैं, आप पैसे कमाते हैं, आप पैसे जोड़ते हैं, इस उम्मीद में कि जो आखिरी के 30 साल हो सकते हैं वहां पे मैं चैन की जिंदगी जीऊं, मैं सुकून की जिंदगी जीऊं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने रिटायरमेंट फंड्स को आज से प्लान करें, और अगर क्लोज है तो उसको बहुत आइडियली यूज करें, क्योंकि अगर किसी को रिटायरमेंट में एग्जाम्पल के तौर पे 40 लाख रुपए मिले और उसने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी एफडी में 7% पे लगा दी, और 3 साल बाद उसके हिसाब से तो उसको 49 लाख रुपए मिलने वाले थे, क्योंकि 9 लाख रुपए का गेन ऑन पेपर था। बट जब उसका टैक्स स्लैब आया, हिट किया, तो एक्चुअली वो पैसा बचा 44 लाख, और अभी तक तो मैंने इन्फ्लेशन की बात भी नहीं करी है। सो अगेन 5G के जमाने में 2G अगर चलाएंगे तो कहीं ना कहीं तो पीछे रह जाएंगे, राइट। सो एक स्मार्ट अल्टरनेटिव क्या है? अगेन मैं इक्विटी का प्रेमी नहीं, मैं गोल्ड का प्रेमी नहीं, मैं एफडी का भी प्रेमी नहीं। मेरे को एक बात समझ में आती है, विच इज मल्टीपल एसेट एलोकेशन। यही पता है, ये
इन्फ्लेशन ग्रोथ है 10 से 12%, टैक्स भी बचता है, इन्फ्लेशन भी बचता है। तो एक एग्जांपल देखो, ये एक रियल क्लाइंट का एग्जांपल है, शायद आप सभी के लिए लर्निंग है। एक क्लाइंट को एक ठीक ठाक सा रिटायरमेंट कॉर्पस मिला, उन्होंने कोई प्रॉपर्टी की थी, रिटायरमेंट कॉर्पस मिला, और उनके ऊपर ना 80 लाख रुपए का एक हाउसिंग लोन था जहाँ पे वो रहते थे। तो आइडियली उनको क्या करना चाहिए? क्या वो लोन खत्म कर दे अगर उनके पास सफिशिएंट पैसे हैं रिटायरमेंट हो? हाँ खत्म कर दे। यस, तो ज़्यादातर लोग यही करते हैं, बट जैसे मेरे जैसे जो पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं वो मैथ्स को ज़्यादा समझते हैं। तो अगर मैं ये आपको बताऊं कि हाउसिंग लोन पे जो ब्याज दर है वो पे कर रहे हैं, हाउसिंग लोन पे जो इंटरेस्ट वो पे कर रहे हैं वो 8% है, ठीक है, और अपने पैसे पे वो 12% कमा सकते हैं, तब क्या करना है? हाँ जी, तब आपको अपना पैसा ग्रो कराना चाहिए और अपने ईएमआई को मैनेज कराना है कि अगर हम कम ब्याज पे कर रहे हैं और पैसे से आप ज़्यादा कमा रहे हैं, तो ऐसे ही काम चलता है। हमने क्या किया, हमने उसके लिए एसडब्ल्यूपी का नाम सुना है सबने? एसडब्ल्यूपी, यस, सिस्टमैटिक विड्रॉल का। तो म्यूचुअल फंड के दो तीन वेरिएंट्स होते हैं, एसआईपी, एसडब्ल्यूपी। एसडब्ल्यूपी क्या होता है? जहाँ पे आप एक साथ कुछ पैसा डाल के पर मंथ इनकम ले सकते हैं। हमने उनके लिए क्या किया, म्यूचुअल फंड पे एकदम सेफ डाइवर्सिफाइड मल्टी एसेट फंड में पैसा डाल दिया एंड उनको जो उनकी महीने की ईएमआई थी वो वहां से दे दिया। अगर इसका रिजल्ट क्या रहेगा? अगर आज 2 करोड़ 40 लाख रुपए में से उन्होंने 80 लाख रुपए दे दिया होता, तो आई थिंक यहाँ पे ज्यादातर लोग कॉमर्स या फिर मैथ्स वाले साइड पे होंगे। तो अगर 2 करोड़ 40 लाख रुपए उनके पास है, 80 लाख दे दिया, तो 1 करोड़ 60 लाख उनके पास बचा। एक्सपेक्टेड रिटर्न वाज ओनली 10%, तो उनके पास अगले साल कितना पैसा बढ़ जाता? 16 लाख। और कितनी? अब अगर मैंने उनके 2 करोड़ 40 लाख रुपए होल्ड करा लिया और अगेन 10% की ग्रोथ है 24 लाख, राइट? तो ये जो 8% का 8 लाख रुपए का आपको पर ईयर का ग्रोथ दिख रहा है ना, ये सोचिए, क्योंकि अभी तो रिटायर हुए, उनको अब आगे पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं है, खाली पैसे उनको मिलते हैं 150। तो अगले 30 साल में वो कितना अच्छा होगा? अब दिस इज कॉल्ड मॉडर्न वे ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि हमें सबसे छोटे बच्चों से सीखनी चाहिए, तो 3 साल 4 साल का बच्चे से, जिसको अगर जिसके पास 1 खिलौना है, 2 खिलौना है और आप उसको तीसरा या चौथा दे दो, क्योंकि वो पुराना को जाने देता है, सब रख देता है। आज का जमाना यही है, इफ यू आर गेटिंग मनी फ्रॉम एनीवेयर, रख दो। फिर तो खर्चे सामने आ रहे, कार लेने का मतलब कोशिश करो या किसी से बात करो, ऐसे व्यक्ति से जो आपकी मदद कर सके कि वो बिना पैसे दिए उसी पैसे के ब्याज से कार रख दे। आपके पास एफडी, मैं एग्जांपल छोटा सा एफडी से समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। आपके पास 10 लाख रुपए की एफडी जिसमें से आपको 6000 रुपए पर मंथ मिल सकते हैं, ठीक है। अब आपका कार खरीदने का मन है, आपने एक छोटी सी टाटा टियागो प्लान कर ली, जिसमें आपने 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दी, ठीक है, और बाकी आपने क्या किया, उस एफडी के ब्याज से आपने कार की ईएमआई पे की। अब ये तरीका ही आज की डेट में आपको चाहिए, क्यों? क्योंकि आप अपने बाबूजी के टाइम पर याद करिए, उनकी सैलरी हंड्रेड्स में होती थी, राइट? आपकी सैलरी आपके रिटायरमेंट आते आते लाख की, ठीक है, और आप आजकल की यूथ, मेरे ही 27 साल की क्लाइंट है, आपके भी स्टूडेंट्स हो गए ऐसे, जो आज 3 लाख 4 लाख रुपए अपनी दूसरी तीसरी जॉब से उठा रहे, राइट? तो आपकी ब्लड लाइन में कैसे ये पैसा छूटेगा? भाई ब्लड लाइन में पैसा रहेगा तभी तो हमारी फैमिली में वेल्थ रहेगा। तो जो भी पैसा आपके ब्लड लाइन में आ रहा है, आप कोशिश करें उसको इतना आइडियली मैनेज करें कि आपको पैसे खर्च ना करना पड़े, चाहे वो बड़े से बड़ा गोल, घर खरीदना, कार खरीदना, फॉरेन वेकेशन, वाइफ को ज्वेलरी गिफ्ट करना, एनिवर्सरी मनाना, हाउ टू डू दैट, वो आपको एक एक्सपर्ट डेफिनेटली बताएगा। आज के डेट में सब कुछ अवेलेबल है। तो हमारी स्ट्रैटेजी ये रहेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कि हम आपके लिए सबसे पहला काम करें आज के दौर में एक इमरजेंसी फंड क्रिएट, क्योंकि तब आप जाके मेंटली फ्री रहेंगे। तो सिक्योरिटी की बात करिए ना, तो
सिक्योरिटी आप खाली सोच रहे हो, है नहीं, आपको सिक्योरिटी तब चाहिए जब आपके पास 12 महीने के खर्चे एकदम रेडी है, आप बिल्कुल फ्री। दूसरा है गोल्ड बेस्ड एलोकेशन। आप मुझे अलग अलग गोल्स बताइए या आप खुद सोचिए और सबके लिए अलग अलग निवेश करिए, ये हमारी सोच है। मिड टर्म होगा, लॉन्ग टर्म होगा, तो हम आइडियल प्रोडक्ट को चूज कर पाएंगे। दूसरा है ईएमआई का ही दौर है। आज की डेट में हर दूसरा व्यक्ति के पास किसी न किसी तरह की ईएमआई है, चाहे वो हाउसिंग लोन की हो, चाहे कार की हो, चाहे किसी भी चीज की हो। तो आप अपने पैसे से एसडब्ल्यूपी लेके ईएमआई को मैनेज करें। कैसे कर सकते हैं हम आपको बताएं। गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल ग्रोथ, ज्यादातर पैसा बढ़ता है। सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, आजकल 10-12% से पैसा बढ़ाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप में से कोई दो लोग अपना फेवरेट बैंक बताइए, आपका फेवरेट बैंक स्टेट बैंक और किसी का आईसीआईसीआई। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। गो एंड सर्च फॉर एसबीआई मल्टीएशन, गो एंड सर्च फॉर आईसीआईसीआई मल्टीएशन। देखिए वो क्या करता है, थोड़ा पैसा मार्केट में, थोड़ा पैसा रियल एस्टेट में, थोड़ा पैसा गोल्ड में, थोड़ा सिल्वर में, थोड़ा गवर्नमेंट बॉन्ड और 10 साल के रिटर्न से कोई रॉकेट नहीं। यस एचडीएफसी में मैंने कहा कोई भी बैंक, रिकॉल का सर्च कर लीजिए, फ्रांचेस का सर्च कर लीजिए, एसबीआई, यूटीआई पुराना बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन। आई विल से कि ये मैं एग्जांपल इसका ये मतलब नहीं कि मैं यहाँ पे आपको एडवाइस कर रहा हूँ, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू कि 10 से 12% का रिटर्न कमाना आसान बात नहीं। अब आप देखोगे आसान है अगर आपको गोल 3 से 5 साल का, बट आप देखोगे कि हम लोन भी तो कम से कम 5 साल का लेते हैं या 3 साल का लेते हैं, चाहे वो कार का ले रहे हो, राइट, चाहे हम एजुकेशन लोन ले रहे हो, चाहे हम कोई हाउसिंग लोन ले रहे हो, और उसका ब्याज दर क्या है, एवरेज 8%। तो बिना कुछ करे मैं 3% के प्रॉफिट में रह सकता हूँ। You just have to trust the process and manage the cash flow, right? So that's all from my side. And अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज मुझे बता सकते हैं। XIRR, yes, yes, okay. So सर का क्वेश्चन है, दो तरह के रिटर्न्स दिखाता है, हमें सिर्फ रिटर्न समझ में आता है। सर ने उसको टेक डाउन किया, एब्सोल्यूट रिटर्न एंड XIRR, ओके। तो एब्सोल्यूट रिटर्न क्या होगा है कि अगर मैंने एक 10 लाख रुपए की एफडी करी और वो 7% सिंपल इंटरेस्ट से 10 साल के लिए कर दी, तो मेरा पैसा कितना बनेगा, 70%, राइट। तो ये क्या दिखाएगा कि मेरा पैसा 70% जो बढ़ा, ये है कि मेरा पैसा टोटल कितना था, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिटर्न। मैंने कहीं पे 1 लाख रुपए लगाए और वो 5 साल के अंदर 2 लाख हो गए, तो जो 100% की ग्रोथ मिली, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिटर्न, जितना मेरे को ओवरऑल ग्रोथ मिला। बट अगर मैं जब उसको टाइम और पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ, देन इट इज कॉल्ड XIRR, एक्सपेक्टेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो जब हम उसमें डालते हैं कि मैंने हर इन्वेस्ट किया पर एनम का रिटर्न क्या होगा, तो इसको क्या कहा जाता है, XIRR डेफिनेटली। जैसे बहुत इसको तो मैं बहुत अच्छे एग्जांपल से समझा रहा था। किसी ने मेरे से बोला कि म्यूचुअल फंड में क्या हो सकता है, मेरे लिए कोई चीज अच्छी है, आपके लिए कोई मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, तो हो सकता है बुरी, पर ऐसा आपने बोला कि उन्होंने कहा गोगी लेकर में मैंने 5 लाख रुपए का फ्रॉड किया था बैक इन 1990 और आज 2022 में उसकी वैल्यू जो है वो 1.5 करोड़। अच्छा ठीक है, मैंने सुना, फिर मैंने कैलकुलेटर में डाला तो मैंने पाया उसकी प्रॉपर्टी का जो पर एनम यानी XIRR ग्रोथ था वो हार्डली 8%। दरअसल अब मुझे लग रहा है कि मेरे को बोलना चाहिए कि ये सही नहीं है, क्योंकि गोल्ड का भी कोई नहीं है, का भी इतना ही है। तो अगर आपने एनुअल रिटर्न कैलकुलेट करना चालू करें तो आप आधे से ज़्यादा रिटर्न आधे से ज़्यादा फाइनेंशियल डिसीजन सही करना चालू करें। तो आप हमेशा XIRR पे फोकस करिए। आप आज की डेट में शायद से या गूगल से या किसी भी कोई भी ऐप आप यूज़ कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करने के लिए, वहाँ पे रिटर्न दिखा रहा है, तो उसके ध्यान से पढ़िए वो एब्सोल्यूट है या XIRR।
मेरे बहुत से क्लाइंट मुझसे कहते हैं कि मेरे स्टॉक्स में 40% का रिटर्न है। मैं तो कहता हूँ इसे देखो जरा, मेरे को ही बता दो, आप सही है मुझे एंड नो और किसी भी कोई प्रश्न? ये सर जी हाँ ओके सर का क्वेश्चन ये है कि ये CAGR एक और वर्ड हम आज सीखने जा रहे हैं, एब्सोल्यूट रिटर्न और XIRR। बीसी सर ने हमें समझा दिया। अब सर का क्वेश्चन है व्हाट इज द CAGR? हाँ सर वहाँ पे XIRR चल रहा है। हाँ जी अब मैं बता देता हूँ CAGR और XIRR में क्या फर्क है। जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आपने एक बार इन्वेस्टमेंट्स करी और आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं, तब आपका CAGR कैलकुलेट होता है। पर जब आप रेगुलर इंटरवल्स में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, राइट, तब वहाँ पे XIRR लागू होता है। तो जब आपने मान लीजिए म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए डाल दिए और आप देख रहे हैं कि 5 साल बाद वो है 12 तो वहाँ पे जो रिटर्न कैलकुलेट करेंगे वो होता है CAGR। आप जब 10,000 रुपए की SIP लगा रहे तो आपकी आखिरी इन्वेस्टमेंट को लास्ट मंथ गई होती है, तो वहाँ पे आपका कैलकुलेट होता है XIRR।
उसको काफ़ी अच्छी है और इन्वेस्टमेंट करते हैं ये तो याद है बहुत सारे पेड़ों की स्कीम मैंने भी और उन्होंने सपना दिखाया कि 3,500 रुपये का टी मिलेंगे और 20 साल के 1 लाख रुपये उसको देखा और ये तो लेकिन वो ना कंपनी का पता लगा और ना ये पता लगा पेड़ के लेकिन 3,500 रुपये को उसका 3 साल क्योंकि तनख्वाही बात नहीं लगा तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सोच समझ बाकी जो लेबर हो उसे कहा जा रहा है मुझे एक चीज़ और याद आ रही है कि मैंने फ्रेश PhD सबमिट की थी अपने एज ए स्टूडेंट और मेरे फैमिली फ्रेंड्स के और मैं आगरा में तो वो आए और मुझे क्या करोगे गई है लेक्चरर कराते लेक्चरर और 3,500 की सैलरी है बाबा बोल रहे हैं कि शादी करते और तो उन्होंने मुझसे कहा कितने साल नौकरी करो जो मेरी एज थी उससे 35 साल बनते रिटायरमेंट एज तक साल करते तो 35 से 35 साल नौकरी करूँगा तो फिर वो बोले 35 साल तक मैं करना मैंने 15,000 अरे ये मैं बात कर रहा हूँ 1991 में तो मतलब मेरी सोच थी कि गलत मैं ये बना तो उन्होंने ये कहा उनका बिजनेस उन्होंने किया था उनका बिजनेस में बॉटल प्लांट लगेगा और आगे पहले बॉटल प्लांट लगाया वो लगाना था तो आज अगर जो बिजनेस था उन्होंने बोला हम आपको 15,000 देते आप उनका ये ऑफर लेकिन उसका जोश था हम आगे लेक्चरर भी थे तो गवर्नमेंट जॉब का अलग जो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ तो 91 में मैंने सोचा कि मैं रिटायरमेंट अभी मैं रिटायरमेंट होगा तो उस समय मेरी सोच थी जो 15,000 लेकिन आज 3,500 तो सीधा तो वेयर दैट मनी can go to get different idea and they are given us the real examples. Okay, how you can grow your money, how you can